It is a length formula. When object is placed between F and 2F, image is formed beyond 2F. Real, inverted and enlarged. Here triangle A dash B dash O, triangle A dash B dash O similar to triangle ABO. A dash B dash O similar to triangle ABO. Now A dash B dash upon AB, it is equal to OB dash upon OB. Here, what is OB dash? OB dash is V upon minus U. ध्यान में रखना. It is इक्वेशन 1 हो गया. V upon माइनस, इधर की डिस्टेंस को निगेटिव, उधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव, तो V upon U. फिर देख लेना A dash B dash F, अगेन triangle A dash B dash F similar to triangle MOF. triangle MOF similar हो गया. So A dash B dash upon MO, it is equal to FB dash upon OF. A dash B dash F OF. तो FB dash upon OF. FB dash upon OF. What is the FB dash? OB dash minus OF. FB dash है ना? OB dash minus OF. So OB dash minus OF upon OF. OB dash is B. OF is F upon F. This is 2. Here see, अभी 2 ना लिख के थोड़ा सा एक चीज और लिख लें. MO is equal to AB. MO is equal to AB. So we write here A dash B dash upon AB. It is equal to V minus F upon F. अब 2 लिखो. अब देखना from 1 and 2, A dash B dash upon AB, V upon minus U, and A dash B dash upon AB, V minus F upon F. Is it clear? Yes, sir. So from 1 and 2, both will be same. So we will write here from 1 and 2. From 1 and 2, what you get here? 8V upon minus U, it is equal to V minus F upon F. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस UV प्लस UF, VF it is equal to minus UV प्लस UF. ये ध्यान रखना. तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है V upon minus VF is equal to minus UV plus UF. So UF minus VF, it is equal to UV होगा. Yes, sir. And therefore इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं. UV से दोनों तरफ डिवाइड करो. UF upon UV माइनस पूरा पढ़ा रहा है ना. हाँ सर. upon UV, it is equal to 1. U cancelled out, V cancelled out. F upon B to 1 upon B minus 1 upon F को उधर ले जाओ.
This is the length formula. Clear? This is the length formula. Now magnification. After this we will write the magnification. Magnification can be defined as it is the ratio of the height of the image to the height of object. So if I write down magnification, it can be defined as it is the ratio of height of image to the height of object. Magnification can be defined as it is the ratio of height of image to the height of object. Now A dash B dash, therefore A dash B dash upon AB, it is equal to A dash B dash upon AB, it is equal to, here it is minus V upon U, ये हमारा from 1 लिखेंगे, from 1 से देख रहे हो ना, height of object image to the height of object, V upon minus U. And now height of object, suppose if it is taken h2 and here it is h1, so minus h2 upon h1, m is equal to, it is, यहाँ पे भी हम लिखेंगे, m is equal to A dash B dash upon AB is equal to V upon minus U, it is equal to minus V upon U, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करो, so m is equal to h2 upon h1, it is V upon U. ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, यही मिरर में ही मैग्निफिकेशन था, v अपान मैग्निफिकेशन, उसमें माइनस v अपान u था ना, और यहाँ पे v अपान u, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 अपान h1, इट इज इक्वल टू v अपान u. इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज मैग्निफिकेशन. इसी को फार्मूले को हम लोग चाहें तो कॉनकेव लेंस से भी डिराइव कर सकते हैं, द सेम फार्मूला. The same formula we can derive with the help of the concave lens. Here you see the concave lens. देखो कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिक सेंटर के बीच रखा जाए तो इट इज, और इसको हम मिला लें ऐसे, तो और ये ऑप्टिक सेंटर से उसे अगर जाए तो वैल्यू ये ऐसे, एक रे इधर चली गई, इधर ऐसे, दूसरा ये ऑप्टिक सेंटर से निकल गई, इट इज ए बी, ये इट इज ए डैश बी डैश, ये हमारे पास एफ हो गया, और इसको हम ले सकते हैं एम. दिस वैल्यू इज वी यू एंड दिस इमेज इज वी एंड दिस फोकस इज एफ. Is it clear to all? Diagram is clear. We just बनाए इसके पहले. Now here two triangles at first, जो उसमें दिए थे यहाँ मिलेंगे, A dash B dash O and A B O, same triangle, नेमिंग वही रहेगा. Triangle A dash B dash O
triangle A dash B dash O similar to triangle ABO similar. So therefore A dash B dash upon AB it is equal to OB dash upon OB. OB dash upon OB. OB dash is what? Minus B, and it is minus U. Minus B upon minus U. This is equal to B upon U. ध्यान रखें ये वैल्यू ये मिलेगी माइनस ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं. अगेन ट्रायंगल A dash B dash F similar to MOF. वहाँ वैसे किए ट्रायंगल A dash B dash F similar to triangle MOF. A dash B dash F similar to MOF. Here you see this implies that A dash B dash upon MO it is equal to A dash B dash O OB dash sorry A dash B dash F MOF. तो FB dash upon ये पूरा ट्रायंगल वाले A dash B dash F तो FB dash and MOF upon OF. So FB dash upon OF. FB dash को लिख सकते हैं OF माइनस OB dash. FB dash OF माइनस OB dash upon OF. Clear? देख लें हम. Here this implies A dash B dash upon MO. MO is equal to AB ना? MO is equal to AB. So AB is equal to OF. इसका फोकस निगेटिव होता. OF is minus F. OB dash माइनस B. इसमें सब निगेटिव होता. बताएं. Upon OF it is minus F and this is equal to minus F plus B upon minus F. और इसको हम लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करो तो F माइनस B अपॉन F ये हो जाएगा F माइनस B अपॉन F. ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा. This is equation 2. Now हो जाएगा from 1 and 2 V upon U is equal to F minus V upon F. Now UF minus UV it is VF. फिर वही आया दूसरा है and this is it is UV. UV से डिवाइड कर दो and you get here UF upon UV VF upon UV it is equal to 1 and U cancelled out and here V cancelled out. So 1 upon V 1 upon U it is 1 upon F. Clear? तो कोई भी ले लो मिरर लेंस. इसी तरह से मिरर में भी कोई ले सकते हम कर सकते हैं और इस तरह से वी गेट द सेम फार्मूला फॉर द कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस. व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? Magnification, if you see
विल गेट द सेम a डैश b डैश, वहाँ माइनस b अपान u है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, दोनों जो इरेक्ट वहाँ इन्वर्टेड थी इमेज। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर देखते हैं, इफ यू सी दिस मैग्निफिकेशन so magnification, it is defined as the ratio of the image to the height of image to the height of object. M is equal to a dash b dash upon ab. Here a dash b dash upon ab both are h2 upon h1 and it is equal to h2 upon h1 from equation 1 we find as m is equal to h2 upon h1, it is v upon u. ये चीज हम वहाँ पाए, we are getting the same value, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर है मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। हाँ, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस का सबसे ज़्यादा रोल होता है और डेरिवेशन का ही रोल है ही, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो उसी पे आते हैं। इसमें तो डेरिवेशन को एक बार परफेक्शन कर लाना पड़ेगा और तब न्यूमेरिकल उसी पर होगा। जैसे कल लेंस मेकर पढ़ाया तो लेंस में उसी फार्मूले पे जितने न्यूमेरिकल सब उसी पर जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। हैव यू नोटेड इट? यस सर। Now magnification in terms of u and f, magnification in terms of u and f, u और f के टर्म में मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u and f। अब होगा क्या? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बैलेंस फार्मूला 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। v upon u मैग्निफिकेशन होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड by u, so u upon v is equal to u by u, it is u upon f, so u upon v ये 1 हो गया, it is 1 plus u upon f and this is equal to f plus u upon f, therefore v upon u, m is equal to v upon u and it is equal to f upon f plus u। एक फार्मूला मिल गया मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u और f के टर्म में ये मैग्निफिकेशन हो गया। सर b से निकालना हो तो फिर b से डिवाइड कर, बस b से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखेंगे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ, नेक्स्ट magnification in terms of v and f, क्लियर? तो हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो v and f, तो v upon v, तो 1 minus v upon u, it is v upon f, so v upon u, it is equal to
1 minus v upon f, and this is f minus v upon f. This is the magnification. यही हमारा magnification. m is equal to v upon u. It is equal to f minus v upon f. ये वैल्यू आ रहा है. क्लियर? ये हमारा लेंस हो गया. और लेंस के बाद हम लोग ये लेंस की फोकल लेंथ ये पढ़ लिए. इसके बाद लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन. इसके बाद पढ़ेंगे लेंस का पावर. पढ़ेंगे पावर ऑफ ए लेंस. तो पावर ऑफ ए लेंस होता क्या है? Converging and diverging capacity of a lens. After this we will study the power of a lens. क्या? नहीं, पूरे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का बेस अब की बार यही बनेगा. प्रोजेक्ट का तुरंत मिलने वाला. लास्ट ईयर बनाए थे वो कौन सा बनाया? इंजन बनाए थे पूरा. कोई 11th का. ऐसा तो कुछ सामान रखा हुआ है आपने. 12th में दूसरा बनाओगे. 11th का नंबर 11th का है, 12th का 12th. सर वो कुछ ठंडों का सामान छूट गया था, लोग दिखाया सब रखा हुआ. हाँ सर, उसको वापस दिलाना. सब ले जाना. मैग्नेट देखो, पावर ऑफ ए लेंस. Converging or diverging capacity of a lens is known as the power of a lens. एक लेंस कितना कन्वर्ज कर पाता है या कितना डाइवर्ज कर पाता है. अब हमारे पास लिख सकते हो पावर ऑफ ए लेंस. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ ए लेंस. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस. एक लेंस की पावर यही होती है कि लाइट को कितना कन्वर्ज कर पाता है या कितना डाइवर्ज कर पाता है. तो इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस इज नोन एज द पावर ऑफ ए लेंस. देखना जरा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. तो वो क्या रहा है? अब हमारे पास ये लेंस है. लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट हो रही पैरेलल और अपनी डायरेक्शन से कितना डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज. देख लेना. अगर इस एंगल को डेल्टा लें तो इट इज आल्सो डेल्टा. इफ इट इज एच एंड फोकस पे ही डाइवर्ज होगी ना. फोकस पे तो फोकस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एफ है. तो tan डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो पावर होती है, इसको पावर को डिफाइन करते हैं टेंजेंट ऑफ द एंगल एट विच द लाइट इज कन्वर्जेज फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन. इट इज नोन एज द पावर ऑफ ए लेंस. पावर होता क्या है? द एंगल टेंजेंट ऑफ द एंगल. जिस टेंजेंट मीन्स tan डेल्टा, जिस एंगल से वो डाइवर्ज कर, जिस एंगल से वो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट पर, इस एंगल को हम पावर कहते हैं. इट इज इक्वल टू कितना होता है? एच अपॉन एफ. इफ एच इज इक्वल टू 1, तभी इसको हम एक डायोप्टर मानते हैं. इफ एच इज इक्वल टू 1 यूनिट डिस्टेंस, देन P is equal to 1 by F. 1 by F. तो यही हमारे पास हम लोग को बचपन में ही बता दिया जाता है ना. P is equal to 1 by F. बचपन में. हाँ, जैसे पढ़े. P is equal to 1 by F. तो
यही हमारे पास एफ अगर मीटर में होगा, इफ एफ इज मेजर्ड इन मीटर देन इट इज 1 डायोप्टर, DIOPTRE डायोप्टर। और जिस डिवाइस से इसको यूज करते हैं उसे डायोप्ट्री मीटर कहते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड बाई a machine or a device that is known as it is measured by the dioptrimeter, diopter, H तो सर लेंस tan delta। वही है कि भाई If H is equal to 1 unit distance, then P is equal to 1 upon F meter, it is equal to 1 diopter. It is measured by the dioptrimeter. Power of a lens is measured by the dioptrimeter. Dioptrimeter. सर लेंसोमीटर क्या होता है? हाँ? लेंसोमीटर लेंसोमीटर? सर इसका नाम क्या होता है? सब कुछ ज़्यादा दिखता है। एक्चुअली डायोप्ट्रीमीटर को ही अलग से कह लेते होंगे, लेकिन वही पावर ही तो मेजर करते हैं। हाँ उससे वही करते हाँ, मैंने लेंस की पावर करते हैं, लेंसोमीटर कर सकते हैं। अब डायोप्ट्रीमीटर थोड़ा अलग लगता है। फैंसी ना लेंस उसको लेंसोमीटर लोग अपने ढंग से कह लेते हैं, है वो डायोप्ट्रीमीटर। डायोप्टर जो साइंटिस्ट था अपने देश अपने ग्राउंड पर रखा गया उसके अपने नेम। अब लेंसोमीटर को नया कर दिया गया। इज इट क्लियर टू ऑल? ये हमारे पास हो गया पावर ऑफ ए लेंस, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ ए लेंस। पावर फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जरा ये भी देख लेते हैं। टाइम है 10 मिनट में। 5 मिनट। चलो शुरू कर देते हैं। पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। Combination of lenses, दो लेंस and two lenses are kept in contact देखना, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाए, यहाँ पे जाएगी लाइट, अब देखो, अगर यह लेंस न होता तो लाइट एकदम ऐसे जाती, इमेज आई डैश पे बनती। ऑब्जेक्ट वो है। एक्चुअली इसको अगर हम थोड़ा सा कंबाइन करें तो कुछ ऐसा बनेगा। दोनों को हम एक लेंस मान के चलते हैं, लेकिन दोनों दो लेंस हैं। एक इसकी मान लेते हैं डिस्टेंस u पे लेके बहुत थिन है, और इसके प्रेजेंस के कारण इसकी फाइनल इमेज v पे बनती है। ध्यान में रखना, v पे बन रही है, इट इज v। और ये डिस्टेंस हम इसको v डैश लेते हैं। ये लेंस हमारा L1 है, ये लेंस L2। Suppose two lenses are placed. हाँ लिख सकते। Suppose two lenses L1 and L2 are kept in contact. If F1 F2 be the focal length, if F1 F2 be the focal length, then for lens L1
length L1 1 upon V dash minus 1 upon U, it is equal to 1 upon F1. 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F. इसका फोकल लेंथ F1 है, U तो सेम है और V है V dash. फार लेंथ L2, फार लेंथ L2 1 upon V minus 1 upon, देख लेना इस लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो 1 upon V dash, it is equal to 1 upon F2. This is 1 and this is 2. Adding 1 and 2, adding 1 and 2, what we find? Here 1 upon V dash, 1 upon V dash cancelled out. 1 upon V minus 1 upon V becomes 1 upon F. So 1 upon V minus 1 upon U, it is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. 1 upon V minus 1 upon U को हम F कहते हैं. So it is 1 by F. It is equal to F1 plus F2. And you know that this is the power of a lens. So combined power P is equal to P1 plus P2. If there are two lenses in contact, if there are many lenses are in contact, suppose, so for n lenses, P is equal to P1 plus P2 Pn. क्लियर? ये हमें नेट पावर मिल जाएगी इसकी. दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. एक टॉपिक और पढ़ाते हैं.